Hey guys, this is Shankar. Welcoming you on my YouTube channel Study with Master. Here I am going to teach you English grammar in which we will study models and we will study bilingually और हम द्विभाषी रूप में पढ़ेंगे so that ताकि we can easily understand it ताकि हम इसे सरलता से समझ सकें and we can develop our English grammar और हम अपने अंग्रेजी के ग्रामर को का विकास कर सकें and we can also simultaneously और साथ ही साथ we can speak English language very easily और साथ ही साथ सरलता पूर्वक हम इंग्लिश भाषा बोल सकें. So there I am here to teach you models. And in earlier video, in the first video, I have told you about the differences between models and primary auxiliaries. Primary auxiliaries और model में जो अंतर हैं उनको मैं बताया हूँ. Right now, अब I am going to tell you how the models are used. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे models use किए जाते हैं. So here we are going to study the uses of models. We are going to study the uses of models. We are going to study the uses of models. Auxiliaries. Model auxiliaries के प्रयोग हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. In which the first one is use of can. Can का प्रयोग हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं. We are going to study what is actually can. The actual meaning of can is सकना या सकता है. But we can say that when we use can, कब हम can का प्रयोग करते हैं and in which condition we will use can और किस परिस्थिति में हम can का प्रयोग कर सकते हैं. So the first one here, can का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ अवस्थाओं में होता है. Can must be used in the following meaning and states or situations. निम्नलिखित अवस्थाओं में हम किसका प्रयोग करते हैं can का. किन किन अवस्थाओं में? The first one is written here to express ability, क्षमता को व्यक्त करने के लिए, which may be जो हो सकती है physical शारीरिक, mental मानसिक या are circumstantial are परिस्थितिजन्य. इन दशाओं में we can used what can, we can used can, हम can का प्रयोग कर सकते हैं. And we know if can, then visually we can speak English language. So dear, study with me English language and please speak English because English is going to be one of the most important languages around the world. Why it is important? Because in this social media era, I'm always telling you that if you know English, you can do something big in your life. आप कुछ बड़ा कर सकते हैं. Really, you can do something big. आप कुछ बड़ा कर सकते हैं. Really, because in this whole world, इस पूरे संसार में, the person those know English, वे जो इंग्लिश जानते हैं, they can earn huge amount of money. वे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं सकते हैं. And they can move around the world और वे पूरे संसार में घूम सकते हैं. So the easiest way of learning English is this way which I am adopting here. यही तरीका है because I am telling you, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, if you can involve yourself with me, यदि आप अपने आप को मेरे साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, then you can easily speak English very well. तो आप सरलता से इंग्लिश बोल सकते हैं. And I'm telling you, और मैं आपको बता रहा हूँ, within 2 to 3 months you may get yourself in a better position. आप अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे. And even you can solve the question those are coming in English. और आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जो इंग्लिश में आ रहे हैं. And simultaneously और साथ ही साथ you can do one thing more. और आप एक चीज और कर सकते हैं. That is none other than, what is that? That is knowing English, how to speak it well. यह वो जानना कि इंग्लिश कैसे बोली जाए. So dear, I'm telling you about can. मैं आपको can के बारे में बता रहा हूँ. When we can use can. Can का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? To express ability, क्षमता या योग्यता को व्यक्त करने के लिए, whether that is physical, चाहे वो शारीरिक हो, mental मानसिक हो, or circumstantial या परिस्थितिजन्य, जो भी क्षमता हो उसको व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? We use can. So let us see examples. चलिए हम examples देखते हैं, उदाहरण देखते हैं. I can do this work. मैं इस कार्य को कर सकता हूँ. It means it is my ability
टू डू दिस वर्क, यह मेरी क्षमता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं. इट इज अंडर माई कंट्रोल, यह मेरी नियंत्रण के अंदर है. सो आई कैन टेल यू, तो अतः मैं आपको बता सकता हूं दैट आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं. इट इज यूज ऑफ कैन, यह कैन का प्रयोग है विच इज टेलिंग योर फिजिकल एबिलिटी, जो बता रहा है आपकी फिजिकल एबिलिटी. नेक्स्ट इज आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. इट मीन्स इट्स माई मेंटल एबिलिटी, यह मेरी मेंटल एबिलिटी है दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश. ही कैन फेस एनी सिचुएशन, वो किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है. इट मीन्स इट इज हिज सर्कमस्टेंशियल एबिलिटी, वो उसकी सर्कमस्टेंशियल, इट मीन्स सर्कमस्टेंशियल मीन्स परिस्थितिजन्य क्षमता है कि ही कैन फेस एनी सिचुएशन, वो किसी भी स्थिति को झेल सकता है. सो इन दिस वे we have studied all the three. The next and the final one is he can solve these problem within an hour. He can solve, वो हल कर सकता है this problem, इस समस्या को within an hour, 1 घंटे के अंदर. He can solve this problem within an hour, वो 1 घंटे के अंदर इस समस्या को हल कर सकता है. It means I am telling you, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ how you are using the word can. आप can वर्ड को कैसे यूज कर रहे हैं. You are using the can word to express your ability. आप can वर्ड को का प्रयोग कर रहे हैं अपनी एबिलिटी, क्षमता को व्यक्त करने के लिए या योग्यता को व्यक्त करने के लिए. वेदर दैट इज, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो और सर्कमस्टेंशियल हो. सर्कमस्टेंशियल मीन्स परिस्थितिजन्य हो. सो ध्यान देने वाली बात इधर ये है कि कैन का प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब होता है एम, इज, आर, एबल टू. जैसे कैन का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, एम, इज, आर, विच इज मीनिंग इज एबल टू, या क्षमता होना. सो वी कैन एक्सप्रेस हियर इन अ सेंटेंस, हम इन्हें वाक्य में व्यक्त कर सकते हैं. जैसे सी कैन पास द एग्जामिनेशन, सी कैन पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकती है. इट कैन बी सेड इन अनदर वे एज सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास करने में सक्षम है. तो एबल टू को दिखाने के लिए एम, इज, आर का प्रयोग कर सकते हैं. किसमें, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में. सो कैन का भाव वही होता है जो एम, इज, आर का होता है, अर्थात एबल टू का होता है. किसमें, प्रेजेंट टेंस में. सो सी कैन पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकती है. इसका मतलब यह है सी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास करने में सक्षम है. नेक्स्ट इज आई कैन डिफीट द एनिमी, मैं शत्रु को पराजित कर सकता हूं. इट मीन्स आई एम एबल टू डिफीट द एनिमी, मैं शत्रु को पराजित करने में सक्षम हूं. इसका मतलब नेक्स्ट है वी कैन क्रॉस द गंगा, हम गंगा पार कर सकते हैं. इट मीन्स वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा, हम गंगा को पार करने में सक्षम हैं. वाई वी हैव यूज द, बिकॉज बिफोर एवरी रिवर्स, प्रत्येक नदी के पहले वी यूज द आर्टिकल. द आर्टिकल इज यूज्ड टू से अबाउट रिवर, रिवर के बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द आर्टिकल का, टू डिफाइन इट, इसको परिभाषित करने के लिए. सो देयर आई एम टेलिंग यू वी कैन क्रॉस द गंगा, हम गंगा पार कर सकते हैं. इट मीन्स वी आर एबल टू क्रॉस द गंगा, अर्थात हम सक्षम हैं क्या करने को, गंगा पार करने को. सो वी कैन टेल इन अनदर वे over here. I'm going back and get it up the next form in future. What will be the condition in future? We are going to study that. हम उसे पढ़ने जा रहे हैं. So here is written, यहाँ लिखा गया है क्या, can का future form का मतलब होता है shall, will या be plus able to. कर सकते हैं shall या will या be plus be, या फिर उसका मतलब क्या होता है एबल टू, इसका मतलब प्लस एबल टू. अगर इस उपयोग कर रहे हैं तो अर्थात इसका प्रयोग क्या है कि कैन का ही हम प्रयोग कर रहे हैं. इसका मतलब देखते हैं, आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल कर सकता हूं.
मैं इसे कर सकता हूँ, इसी का अर्थ सेम अर्थ देगा आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो। मैं ऐसा करने में कल सक्षम होऊंगा, मैं ऐसा करने में कल सक्षम होऊंगा। आई कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक कार्य प्राप्त कर सकता हूँ। आई विल बी एबल टू गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक कार्य प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। सो दीज टू सेंटेंसेस meaning is same, there is no difference. It means can be can express the meaning of future sentence. so कह सकते हैं फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग करने के लिए हम कैन का भाव दिखाते हैं। तो आई कैन डू इट्स टुमारो, इसका मतलब यह हुआ आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो, मैं इसे कल करने में सक्षम होऊंगा। सो नेक्स्ट इज रिटन हियर, द नेक्स्ट रूल इज गिवन हियर। अगला रूल इधर है, कैन का प्रयोग नो हाउ टू के अर्थ में भी किया जाता है। वी कैन यूज कैन का प्रयोग कैन इन 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 द फॉर्म ऑफ किसके रूप में कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं नो हाउ टू, नो जानना, हाउ टू कि कैसे के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। इट मीन्स आई नो, ही नोज, ओ सॉरी, ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चला सकता है। इट मीन्स ही नोज, वह जानता है हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। सो द सेम मीनिंग इज गिवन हियर। सो कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं नो हाउ टू के सेंस में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आई कैन गाइड द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थियों को निर्देशित कर सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ हाउ टू गाइड द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को कैसे गाइड निर्देशित किया जा सकता है, जाता है। इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी थर्ड वन। कैन का प्रयोग हैव द राइट टू के अर्थ में भी किया जाता है। हैव द राइट टू, द राइट टू मतलब अधिकार होने के सेंस में भी किया जा सकता है। जैसे यू कैंट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, तुम एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इट मीन्स यू डोंट हैव द राइट टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपके पास अधिकार नहीं है प्रवेश करने का, किसमें, परीक्षा हॉल में। परीक्षा हॉल में आपका प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, उसी का सेंस दिखा रहा है यू कैन नॉट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। इट मीन्स बोथ सेंटेंसेस मीनिंग इज सेम। you don't have the right to enter the examination hall, एग्जामिनेशन हॉल में आपका प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट वी कैन से वी कैन नॉट चेंज द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को, कार्यक्रम को नहीं बदल सकते हैं। वी डोंट हैव द राइट टू चेंज द प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम को या कार्यक्रम को बदलने का अधिकार नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, चौथा क्या दिखा रहा है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, क्षमता दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट वी यूज, कैन का। संभावना बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। सो द एग्जाम्पल आर गिवन हियर, एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं एंड यू कैन लर्न देम। सो बिफोर दे टेलिंग देम आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश like this, definitely it must be sure that in future you can speak English very well and you can prepare for good services like ISPCs, because if your medium is English then you can easily qualify them and it will be very easy for you, ये आपके लिए बहुत सरल होगी। and even you can clear NDA CDS and its interview, आप इसके इंटरव्यू, NDA CDS के इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं and even you can perform well in your CCL examination, SSC CCL. So I'm telling you dear, please study English like this. And one thing more, you can develop your good personality. आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, because if you know English then you can talk with anyone, whether that is IAS officers, whether that is good personality, whether that is foreigner, you can talk with anyone. It means you are going to grab a big opportunity in your hand. So that is how to speak English well. So I'm telling you, please learn English like this and develop your English
So I'm telling you here the fourth rule of can to express possibility. चौथा रूल क्या है? To express possibility, संभावना व्यक्त करने के लिए. An example we can study, एग्जाम्पल के रूप में we can study, हम पढ़ सकते हैं. This news can be true, यह समाचार सही हो सकता है. Man can make mistakes, आदमी गलती कर सकता है. This news cannot be true, यह समाचार सही नहीं हो सकता है. He can be suitable for this post, वह इस पद के लिए, इस पद के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है. सो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किसका प्रयोग कर दिए हमने? कैन का. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति या आज्ञा के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का. सो इन विच वे वी कैन सी एन एग्जाम्पल. यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रह सकते हैं. सो आई अलाउ यू टू स्टे हियर, आपको मैं आज्ञा देता हूं कि आप यहाँ रहिए या रहें. यू अलाउ यू, आई अलाउ यू टू स्टे हियर, मैं आपको आज्ञा देता हूं यहाँ रहने की. सो नेक्स्ट वी कैन से कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो यहाँ परमिशन मांग रहे हैं. सो इसी परमिशन को कह सकते हैं एम आई परमिटेड टू यूज अ पेन, क्या मुझे आज्ञा दी जा रही है कि मैं आपकी कलम का उपयोग कर लूँ. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? तो इसको कह सकते हैं एम आई अलाउड टू सिट बिसाइड यू, क्या मुझको आज्ञा मिल रही है कि मैं आपके बगल में बैठ सकूँ. यहाँ बिसाइड का बगल में और इसमें यस जोड़ दें तो बिसाइड्स हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है के अतिरिक्त. सो द सेंस विल बी चेंज कम्प्लीटली, अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा. यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं. इट मीन्स यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप अब जा सकते हैं. इसी को कहते हैं पैसिव वॉइस भी. सो यू आर परमिटेड टू गो नाउ, अब आपको आज्ञा दी जा रही है कि अब आप जा सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द 6th rule. So before that, these are 9 rules. So before that, let me get it up and we are going to study the 6th rule. The 6th rule is here to express offer or request. पेशकश या अनुरोध के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका? कैन का. An example is presented here. एक एग्जाम्पल यहाँ प्रेजेंट किया गया है. We can see it, हम इसे देख सकते हैं. Can I bring you a chair to sit in? क्या मैं आपके लिए बैठने के लिए एक चेयर ला सकता हूँ, एक कुर्सी ला सकता हूँ? यह ऑफर है, ऑफर दिया जा रहा है, पेशकश की जा रही है. और दूसरा है कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग लेकर चल सकता हूँ? तो कह सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, यह एक प्रकार की प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है. सो टू एक्सप्रेस ऑफर आर रिक्वेस्ट वी कैन यूज कैन. एक्सप्रेस ऑफर आर रिक्वेस्ट वी कैन यूज कैन. कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं किसके रूप में? किसके रूप में? एक्सप्रेस ऑफर, ऑफर या पेशकश या अनुरोध के रूप में. नेक्स्ट इज 7th वन इज टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन. मुहावरेदार प्रयोग के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं. जैसे आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो कैन का प्रयोग कर दिए. शी कांट हेल्प सिंगिंग, वो गाए बिना नहीं रह सकती. शी कांट हेल्प सिंगिंग, वो गाए बिना नहीं रह सकती. एंड इन इंग्लिश यू कैन गेट बेटर एग्जाम्पल, और अंग्रेजी में आप बहुत अच्छा उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं. व्हेन यू आर यूजिंग मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई कैंट हेल्प लाफिंग, मैं गाए बिना नहीं रह सकता. इसका प्रयोग क्या हो सकता है? वो गाए बिना नहीं रह सकती. इसका प्रयोग क्या हो सकता है? सी कांट हेल्प सिंगिंग. सो यहाँ एक तरह की व्यवस्था या मजबूरी बताई जा रही है. सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन. यहाँ पर एक प्रकार की बाध्यता या मजबूरी बताई जा रही है. सो 8वें में हम कह सकते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर. आदत या प्रकृति की अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन का. जैसे अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन. अ पिक पॉकेट मतलब चोरी करने वाला किसका? जेब कतरा. जेब कतरा कैन स्पेयर नन, नहीं बांट सकता है किसी से.
कुछ खर्च नहीं कर सकता है, इसका मतलब अ फ्रॉडस्टर कपटी कैन डिसीव एनीवन, एक कपटी किसी को भी कैसा कर सकता है, धोखा दे सकता है। डिसीव की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, डी सी के बाद ई आई लिखा जाता है, न कि आई। तो डिसीव मीन्स क्या होता है, धोखा देना। अ फ्रॉडस्टर कपटी कैन डिसीव एनीवन, किसी को भी धोखा दे सकता है। अ पिक पॉकेट मीन्स जेब कतरा कैन स्पेयर नन, कुछ नहीं खर्च कर सकता है या किसी से नहीं बांट सकता है। सो लास्ट वन अबाउट कैन वी कैन स्टडी, दैट इज हियर टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। सो वी कैन से हियर आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, सो दैट ताकि आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, मैं अंग्रेजी अच्छी तरह क्या करूँ, सीख सकूँ। वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट आवर चिल्ड्रेन कैन बिकम गुड सिटीजन्स, ताकि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बन सके। एंड रियली with these two better sentences, with these two motivational sentences, I'm telling you, if really you want to become a good citizen of India, then please learn English language. Please learn at least anything. Please devote yourself and books and gather information in your mind and get a job at least, so that you can support your family in a better way. So there, with these words, I'm going to end my videos. Please like, share and subscribe my videos and do comment. Thank you very much.